السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ہر صبح کا پہلا قدم صحت کی طرف۔ فاطمہ شرازیز باڈی رائٹ ہربل ویٹ مینجمنٹ ڈرنک، بیلنس بی لائٹ 100% ہربل۔ شروعات کیجئے ہیلدی لائف سٹائل کی باڈی رائٹ کے ساتھ۔ لاکھوں لوگوں کا بھروسہ، باڈی رائٹ بی لائٹ the herbal way. Contact 8142877400 or 7729058167. Pillar number 213 Golden Heights Colony, Rajendra Nagar, Hyderabad. تلنگانہ کے گدوال گروکلا اسکول میں فوڈ پوائزننگ، 12 طلبہ متاثر، ایک کی حالت تشویشناک۔ تلنگانہ کے گدوال ضلع میں ایک اور افسوسناک فوڈ پوائزننگ واقعہ پیش آیا۔ سرکاری ST گروکلا ہاسٹل میں فراہم کیے گئے کھانے کے باعث 12 طلبہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہاسٹل سٹاف نے فوری طور پر تمام متاثرہ بچوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایک طالب علم کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دیگر طلبہ زیر نگرانی ہیں۔ اس واقعے کے بعد والدین اور مقامی عوام میں شدید ناراضگی پائی جا رہی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکاری اسکولوں اور ہاسٹلز میں فوڈ سیفٹی پر مسلسل لاپرواہی برتی جا رہی، جس کی وجہ سے ایسے واقعات بار بار پیش آ رہے۔ عوامی حلقوں نے وزیر تعلیم ریونت ریڈی پر بھی شدید تنقید کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ گزشتہ 2 سالوں میں انہوں نے فوڈ سیفٹی یا اسکول نگرانی کے مسئلے پر کوئی ریویو میٹنگ نہیں کی۔ شہری طنزیہ انداز میں کہہ رہے کہ شاید وزیر تعلیم اپنی فٹ بال پریکٹس کے بعد اس سنگین مسئلے پر توجہ دیں گے۔ والدین نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور تمام سرکاری اسکولوں و گروکلا ہاسٹلز میں کھانے کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ صوفی علماء کونسل کی جانب سے مولانا صوفی خیر الدین کا بڑا اعلان۔ انہوں نے امام و مؤذن حضرات کے حقوق کے لیے دھرنا چوک پر 3 دسمبر کو ایک روزہ عظیم الشان احتجاج میں شرکت کرنے کی امام و مؤذن حضرات سے اپیل کی ہے اور کہا کہ اس جلسے کو کامیاب بنائیں اور اس احتجاج میں شامل ہوتے ہوئے اس احتجاج کی حمایت کریں اور اس احتجاج کو کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ احتجاج امام و مؤذن حضرات کے حقوق کے لیے کیا جا رہا۔ دیکھیے صوفی علماء کونسل کی جانب سے مولانا صوفی خیر الدین قادری کا کیا کہنا ہے۔ دائرے میں کیے اور وقت کی پابندی بھی کیے ہیں، تو الحمدللہ کل کا ہمارا جو دھرنا ہوگا وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہوگا۔ 10 بجے سے شروع کر دیا جائے گا اور 3 بجے تک جو ہے نا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو میں اس میسیج کے ذریعے ریاست اور شہر حیدرآباد کے ائمہ و مؤذنین سے پرخلوص خواہش کرتا ہوں کہ کل آپ اس دھرنے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک رہیے، کیونکہ یہ ہمارے اہم مطالبات پر یہ دھرنا دیا گیا ہے کہ حکومت تلنگانہ 10,000 اور 12,000 کا جو وعدہ کیا تھا وہ ابھی تک جو ہے نا پورا نہیں کیا گیا۔ اور مدینہ بس حادثے میں زندہ بچ جانے والے محمد شعیب حیدرآباد واپس آ گئے ہیں۔ ایئرپورٹ پر جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ مدینہ منورہ کے قریب ہونے والے دل دہلا دینے والے بس حادثے میں 45 عمرہ زائرین جاں بحق ہو گئے تھے، مگر اس خوفناک حادثے کا واحد زندہ بچ جانے والا مسافر محمد عبدالشعیب حیدرآباد واپس لوٹ آئے ہیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر جیسے ہی شعیب نے قدم رکھا، وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ ان کے گھر والوں نے گلے لگا کر ان کا استقبال کیا، جبکہ وہاں موجود لوگ بھی اس منظر کو دیکھ کر ایموشنل ہو گئے۔ شعیب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ہے۔ انہوں نے حکومت تلنگانہ، مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی، منسٹر اظہر الدین اور MLA نامپلی ماجد حسین کا خاص طور پر شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کی واپسی کے لیے تمام انتظامات کیے اور بر وقت مکمل کروائے۔ یہ حادثہ 45 خاندانوں کے لیے قیامت تھا، مگر شعیب کی سلامتی ان کے گھر والوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں۔ دیکھیے محمد شعیب کا KBN نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کیا کہنا ہے۔
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से उम्रे के लिए मैं जमा पे गया था मक्के में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हो गया। उम्रे से बदर गए, बदर में ज़ियारत कर ले गए, नमाज पढ़ ले गए, हाफ एन आवर वहाँ पे बैठ के थोड़ा घूम ले गए। बदर से मदीना जा रहे थे हम लोग, वहाँ एक हादसा हो गया। पीछे के पैसेंजर को, हमारे जो बस के पैसेंजर थे उनको वॉशरूम मारा था उनके बच्चे को। तो ड्राइवर साहब को बोले तो ड्राइवर साइड में रोके, पीछे से आगे डोर ओपन करे वॉशरूम का, उसने में पीछे से टैंकर ला के मार दिया। ये हादसा रात में क्या टाइम पे हुआ है? रात में 8:30-9 बजे के बीच में हुआ। आप कूद के निकले गए थे अभी बस में से? पहले ड्राइवर खिड़की तोड़ दिए थे, वह ना फोड़ के दोनों कूद गए, उनके पीछे मैं कूदा, मगर ड्राइवर कूदे उनको आग लपट के पूरी मेरे को भी लगी थी, मगर मैं जल्दी कपड़े निकालते थे। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की तोसी से मुतल्लिक 2 अहम ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा 27 म्यूनिसिपलिटीज और कॉरपोरेशंस को आउटर रिंग रोड के अंदर जीएचएमसी में जम करने का अमल तेज हो गया है। ये ऑर्डिनेंस म्यूनिसिपल एक्ट में अहम तरामीम और इसकी तोसी से मुतल्लिक हैं, जिन्हें रियासती काबीना ने 25 नवंबर को मंजूरी दी थी। रियासती हुकूमत गुज़िश्ता 2 बरस से शहर की म्यूनिसिपल हुदूद में बड़े पैमाने पर तोसी के मंसूबे पर काम कर रही थी। इस मंजूरी के बाद जीएचएमसी की ये हुदूद 650 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर तकरीबन 2000 मुरब्बा किलोमीटर तक पहुंच जाएंगी, जबकि ग्रेटर हैदराबाद की आबादी भी 3 गुना बढ़कर तकरीबन 2 करोड़ होने का इम्कान। हुकूमत ने जीएचएमसी और म्यूनिसिपल एक्ट में जरूरी तरामीम करके आउटर या एरिया में मौजूद 7 कॉरपोरेशन और 20 म्यूनिसिपालिटीज को मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपालिटी का हिस्सा बना दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ही 51 मज़ाफ़ाती देहात को म्यूनिसिपालिटीज में जम किया जा चुका है। अब आउटर रिंग रोड के अंदर मौजूद तमाम म्यूनिसिपल इलाकों को बाज़ाब्ता तौर पर जीएचएमसी में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद जीएचएमसी का दायरेकार मुल्क का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल एरिया बन जाएगा। इस वक्त रकबे के लिहाज से हैदराबाद, दिल्ली और बेंगलुरु के बाद तीसरे नंबर पर था। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का रकबा 1400 मुरब्बा किलोमीटर, जबकि बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 742 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। लेकिन 27 म्यूनिसिपालिटीज के जीएचएमसी में मुकम्मल इंतजाम के बाद ग्रेटर हैदराबाद 2000 मुरब्बा किलोमीटर के साथ मुल्क की सबसे बड़ी शहरी बल्दिया बन जाएगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड HMWSSB ने अपने पूरे दायरे इख्तियार में 100 रोज़ा खुसूसी डोर टू डोर सर्वे का आगाज़ किया है। इस मुहिम का मकसद गैर कानूनी सेवरेज कनेक्शन की निशानदही करना, कनेक्शन के ज़ुमरे की तस्दीक करना, मुनासिब बिलिंग को यकीनी बनाना और पानी के इस्तेमाल में शफाफियत को बेहतर बनाना है। ख़ुसूसी तौर पर तरबियत याफ्ता फील्ड टीमें हर घर का दौरा करेंगी ताकि ये मालूम कर सकें कि सेवरेज कनेक्शन मजाज हैं या गैर मजाज हैं और आया वो घरेलू या तिजारती ज़ुमरे में आते हैं। सर्वे के दौरान अहलकार सेवर पाइपलाइन के साइज़, कनेक्शन की तादाद, मीटर की तफसीलात और इस्तेमाल की नौइयत की तस्दीक करेंगे। तमाम डेटा को एक मखसूस मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए फौरी तौर पर हासिल किया जाएगा, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड की दुरुस्त देखभाल मुमकिन होगी। सरकारी तौर पर घरेलू कनेक्शन रखने वाली लेकिन तिजारती सरगर्मियों में मसरूफ इमारतों को तिजारती जुमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये दोबारा दर्जाबंदी, गलत इस्तेमाल की तारीख से नजरसानी शुदा बिलिंग का बाइस बनेगी। HMWSSB के मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक रेड्डी ने कहा है कि जहां गैर कानूनी सेवरेज कनेक्शन का पता चलता है, नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके बाद 3 साल के चार्जेस के बराबर जुर्माने के साथ रेगुलराइजेशन की जाएगी। वाटर बोर्ड ने हिदायत की है कि हर सेक्शन 100 दिनों के अंदर 100% सर्वे कवरेज हासिल करे। सेक्शन मैनेजर्स को अमल दरामद के लिए बराह रास्त जिम्मेदार बनाया गया। सर्वे टीम में सार्फिन की तादाद, मीटर की हैसियत, मकान का रकबा, मंजिलों और कमरों की तादाद और कनेक्शन की किस्म समेत मुकम्मल तफसीलात इकट्ठी करेंगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में रेगुलराइजेशन, मीटर की तनसीब और जुमरा दुरुस्तगी के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। शफाफियत को यकीनी बनाने और डेटा में हेरा फेरी को खत्म करने के लिए विजिलेंस विंग अहम मशक़ मुकम्मल होने के बाद एक नमूने का दोबारा सर्वे करेगा। अहदेदारों ने मुतनबा किया है कि कोई भी तजाद पाया गया तो सख्त महकमाना कार्रवाई की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेड ऑफिस के अहाते में ब्यूटिफिकेशन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। फाउंटेन, लैंडस्केपिंग, गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्मों और पेंटिंग का काम मुकम्मल हो चुका है। इफ्तिताह की सहूलत के लिए हतमी मराहल तय किए जा रहे। GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर मुत्तसरी लता शोभन रेड्डी और अहदेदारों ने पहले ही कई बार ब्यूटिफिकेशन के काम की पेशरफ्त का जायजा लिया है। हुकाम इस महीने की 4 तारीख को फव्वारा और गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्मों का इफ्तिताह करने के इंतजाम कर रहे हैं।
हैदराबाद के जेडी मेटला पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ शाहपुर नगर चौराहे पर एक नौजवान खातून नशे में धुत होकर सड़क पर हंगामा करने लगी। उसने गाड़ियों की रवानगी को रोक दी और ड्राइवरों को परेशान किया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और उसे समझाने की कोशिश की तो वो सब इंस्पेक्टर को पीछे ढकेलती हुई पुरतशद्दुद रवैया अख्तियार करने लगी। इस दौरान उसने कहा कि वो आंध्रा की नहीं बल्कि आंध्रा जाना चाहती है। ये खातून वीडियो बनाते हुए लोगों पर भी गुस्सा करती रही। आखिरकार पुलिस ने एक ऑटो को रुकवा कर उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिस पर सार्फिन ने मज़ाहिया तबसरे किए। एक सारिफ ने कहा कि वामो कौन सा ब्रांड पिया था, इतना असर हो गया, जबकि दूसरे सारिफ ने तबसरा किया कि पहले लड़के नशे में सड़क पर लड़ाइयाँ करते थे, अब लड़कियां नशे में पुलिस के साथ हंगामा कर रही हैं। शोबे टेली मौसलात की जानिब से तमाम नए मोबाइल फ़ोन्स में संचार साथी ऐप को लाजमी तौर पर प्री इंस्टॉल करने और उसे डिलीट या डिसेबल ना किए जाने के हुक्म के बाद सियासी रद्दमल मज़ीद शदीद हो गया। हुक्मनामे में वाज़ेह किया गया था कि ये ऐप हर नए डिवाइस के इब्तदाई सेटअप में नुमाया तौर पर नज़र आना चाहिए और उसे गैर फ़ाल करने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम का मकसद साइबर फ्रॉड, डुप्लिकेट IMEI और चोरी शुदा फ़ोन्स की दोबारा फ़रोख्त जैसे मसाइल को रोकना है। लेकिन अपोजिशन ने इस फैसले को एक बड़े निगरानी निज़ाम की शुरुआत करार देते हुए सख्त तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। कांग्रेस ने इस मामले पर पार्लियामेंट में तहरीक अल्तवा का नोटिस देकर बहस कराने का मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लिमान प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामान के अहाते में सहाफ़ियों से बात करते हुए इसे जासूसी ऐप करार किया। उनका कहना था कि शहरियों को अपने खानदान और दोस्तों से राब्ते के दौरान मुकम्मल राजदारी हासिल होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत मुसलसल लोगों की हर हरकत पर नजर रखने की कोशिश कर रही। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुल्क को एक आमराना निजाम की तरफ धकेला जा रहा, जबकि पार्लियामेंट में भी बहस व मुबाहिस से गुरेज किया जा रहा। प्रियंका गांधी के मुताबिक फ्रॉड रिपोर्ट करने के मुयस्सर निजाम की जरूरत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसके नाम पर शहरियों के फोन तक मुकम्मल रसाई का जवाब नहीं दिया जा सकता। That's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great length on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. Election Commission ने WhatsApp पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के दूसरे दिन भी इंतखाबी फहरिस्त की खसूसी गहरी नजरसानी के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत मुख्तलिफ अपोजिशन जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने मकरद्वार के बाहर जमा होकर इस कार्रवाई के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। उनका मुतालबा था कि SIR की जारी अमल पर फौरी तौर पर पार्लियामेंट में मुफस्सिल बहस कराई जाए, क्योंकि ये बराह रास्त शहरियों के हक रायदही से मुतल्लिक है। ख्याल रहे कि सरमाई इजलास के पहले दिन अपोजिशन ने SIR पर बहस न होने पर शदीद एहतजाज किया था, जिसके सबब लोकसभा की कार्रवाई कई मरतबा मुलतवी हुई। इजलास के दूसरे दिन भी ये सिलसिला जारी रहा और हंगामाराई के सबब लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। अपोजिशन का कहना है कि 12 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में चलाई जा रही खसूसी गहरी नजरसानी में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं, जिससे इंतखाबी शफाफियत और अवामी हुकूक मुतासिर होते हैं। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा में इतला दी कि किंगफिशर एयरलाइंस के सरबराह विजय माल्या, 5 स्टार इंटरनेशनल के मालिक नीरव मोदी और स्टर्लिंग बायोटेक ग्रुप के नितिन संदेसरा समेत 15 बड़े मफरूर ताजिरों को इख्तिसादी मुजरिम करार दिया जा चुका है। इन तमाम अफराद ने मुख्तलिफ बैंकों को मजमूई तौर पर 31 अक्टूबर तक 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। ये कार्रवाई 2018 के मफरूर इख्तिसादी मुजरिमों से मुतल्लिक कानून के तहत की गई। वजीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ने ऐवान में बताया कि इन 15 अफराद की वजह से बैंकों को असल रकम में 26,645 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि NPA करार दिए जाने की तारीख से 31 अक्टूबर तक 31,437 करोड़ रुपए सूद की सूरत में इजाफी नुकसान का सामना करना पड़ा। हुकूमत के मुताबिक अब तक 19,187 करोड़ रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। फहरिस्त में शामिल दीगर नामों में ज़ोइलॉक्स
सिस्टम्स के सुदर्शन वेंकट रमन, रामंजम शेषारत्नम, स्टेरलिंग बायोटेक के चेतन सिद्धेसर और पुष्पेश कुमार बेद भी शामिल हैं। इन सब ने मुख्तलिफ बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक समेत कई दीगर को भारी नुकसान पहुंचाया है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।